Okay, so we have already studied the monohybrid cross of Mendelian experiment or the inheritance of one gene. Now, in the monohybrid cross, which was performed by Mendel on Pisum sativum, he formulated the two laws of the genetics. Those laws we have already studied in the previous lecture. They were the law of dominance and law of segregation, also known as law of purity of gamete. Now, in case of the Mendelian inheritance, the characters, the 7 typical characters which were chosen by the Mendel, they are called typical Mendelian characters. So, those 7 typical Mendelian character, each character is expressed in the form of 2 alternative form, which we call the traits of the character. So, in all those 14 traits or the 7 character, the phenomenon of complete dominance and complete recessiveness was shown. But after Mendel, some experiments were performed where it is observed that every time a particular type of trait is not completely dominant over the other trait. तो मेंडल के बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए जहां पे ये ऑब्जर्व हुआ कि हमेशा कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट जो होता है, एक फीचर जो होता है, वो दूसरे फीचर को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता है. तो समटाइम ये होता है कि ब्लेंडिंग टाइप के इनहेरिटेंस देखने को मिलते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कैरेक्टर या दोनों फीचर थोड़ा थोड़ा जो है वो आ जाते हैं. तो हम लोगों ने अब तक के मेंडल के 2 लॉज पर स्टडी किया है. एक लॉ और मेंडल का बचा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस इन 2 जीन्स में और डायहाइब्रिड क्रॉस में. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अभी हमको जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़ना है. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्लेंडिंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. इसमें द 2 अलील्स they express themselves simultaneously. दोनों अलील्स जो है वो साथ में एक्सप्रेस होते हैं and both the alleles they express their expression or character partially. दोनों साथ में आएंगे और थोड़े थोड़े आएंगे. So let us take the example. With the help of example we can study the incomplete dominance. The most common classical example is the flower color in 4 o'clock plant. Or scientifically it is also called Mirabilis jalapa plant. One more plant is there, it is called as the snapdragon plant or antirrhinum plant. In both of them, the flower color shows the phenomenon of incomplete dominance. So in both of these 2 plants, in 4 o'clock plant or Mirabilis or in snapdragon or antirrhinum plant, 2 wild varieties of the plants are known. So they produce either red flower and the another wild variety is white flower. वाइल्ड वैरायटी उसको बोलते हैं जो कॉमनली ग्रो होते हैं और हाइब्रिड वैरायटी उसको बोलते हैं जब वाइल्ड वैरायटीज आपस में क्रॉस करके कोई न्यू ट्रेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. सो देयर आर दीज 2 वाइल्ड वैरायटीज. इफ वी टेक वन प्लांट हैविंग द रेड फ्लावर and another plant having the white flower as a parental generation, and we cross both of these 2 plants. The red flower, it is represented by genotype capital R,
white flower represented by genotype small rr. Now when gamete formation takes place, both of these two R alleles, they get segregated from each other by the law of segregation mentioned by Mendel. So each gamete will possess one R allele out of the two, and here also each gamete will possess one small r allele out of the two small r from the parental generation. Now when both of these two they get fused or fertilized, it will form the F1 generation, and in the F1 generation, as we can see from this cross, the genotype is capital R and small r. So if we use the Mendel's law of inheritance, law of dominance here, this F1 plant, it should produce all the flowers having the red color, but practically it is not observed. It is observed that when one red flower possessing plant is crossed with white flower plant, they will produce in the F1 generation all the plants having the pink flowers. तो जब हम लोग एक रेड फ्लावर रखने वाले प्लांट को व्हाइट फ्लावर रखने वाले प्लांट से क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन में अगर हम मेंडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है वो रेड वाला जो है इसके ऊपर डोमिनेंट होना चाहिए या व्हाइट वाला डोमिनेंस होना चाहिए, मतलब दोनों पेरेंट में से कोई एक कैरेक्टर ही इधर एक्सप्रेस होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर हमको जो है वो सारे के सारे प्लांट जो है वो ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर पिंक फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। सो ऑल द F1 दे आर इन बिटवीन द पेरेंटल जनरेशन, दोनों पेरेंटल जनरेशन के इन बिटवीन आ रहे हैं। तो ये इस टाइप का जो इनहेरिटेंस होता है इसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रेड जो कैरेक्टर है इसने व्हाइट वाले कैरेक्टर को सप्रेस नहीं किया, मतलब डोमिनेट नहीं किया। सो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस one trait do not suppress the other trait completely, or the other trait is not suppressed by the first trait completely. Both of them, white and red, both of them they will blend together, दोनों एक दूसरे से मिक्स होते हैं और जो फिनोमिनन प्रोड्यूस होता है वो इन दोनों के इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पर हमको जो है वो सारे के सारे पिंक फ्लावर रखने वाले प्लांट्स मिल जाते हैं। Now for obtaining the F2 generation, as we know from the Mendelian cross, for obtaining the F2 generation we should cross F1 individual by themselves। तो अगर हमको F2 जनरेशन ऑब्टेन करना है तो हम दोनों यहाँ से जो है वो F1 प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे, सेल्फ पॉलिनेट होने देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सपोज दिस इज कैपिटल आर स्मॉल आर, पिंक फ्लावर वाला प्लांट है और इसको हमने सेल्फ क्रॉस होने दिया है, कैपिटल आर स्मॉल आर। नाउ द गैमेट्स व्हिच आर फॉर्म हियर, कैपिटल आर स्मॉल आर, हियर आल्सो कैपिटल आर स्मॉल आर। When they randomly fused with each other, they will produce the F2 as capital R, capital R, capital R, small r, again one capital R, small r, and one small r, small r. So this is the genotype of the F2 generation. Now we write the phenotype. This capital R, it is the red flower producing plant. This is the pink flower producing plant, and this will also produce pink flower, and this one genotype will produce the white flower. So here, as we can see in the F2 generation, the monohybrid Mendel's ratio was not followed here. So that ratio, it was the 3:1 ratio. And phenotype,
we can write the ratio which is obtained. So as we have seen here, we are observing here, out of the 4 plant, 1 is red and 2 are the pink and 1 plant produce white flower. So we obtain 1:2:1 ratio, and this ratio is for both phenotype and for genotype. अगर हम लोग phenotype भी देखते हैं तो phenotype में भी हमको जो है ये एक रेड और 2 पिंक और एक व्हाइट मिलता है, तो ये रेशो हमको जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो ये रेशो हमको जो है वो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। 4 में से एक प्लांट कैपिटल आर वाला है, 2 प्लांट कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हैं और एक प्लांट जो है वो स्मॉल आर वाला है। 4 में से मीन्स 25% रेड, 50% पिंक एंड अगेन 25% व्हाइट। सो दिस इज द रेशो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रेड वाला फीचर है, रेड वाला जो कैरेक्टर है, ये व्हाइट वाले कैरेक्टर को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर रहा है। तो यहाँ ये होती है, ये अपनी एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। Then we will see the codominance, the next non-Mendelian character. कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस में क्या होता है, here the 2 alleles they will express themselves equally and simultaneously। यहाँ पे 2 जो अलील रहेंगे वो एक दूसरे के ऊपर, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा या कोई अलील किसी दूसरे अलील से जो है पूरी तरह से सप्रेस नहीं होगा। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस होंगे और दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे और साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करेंगे। सो इक्वल एंड साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन ऑफ 2 अलील यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अब इसकी जो एग्जांपल दी हुई है वो आप लोगों ने 12th में स्टडी किया होगा कि कोड कलर इन कैटल, तो वो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बट इन एनसीईआरटी द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इट इज ऑफ द ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पर और हम लोग जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप के रिलेशन में कोडोमिनेंस को स्टडी करेंगे। So the common example is coat color in cattle. Coat color means skin color. काउस के अंदर जो उनका स्किन कलर होता है वो इसको फॉलो करता है। तो मैं वो पूरा क्रॉस लिख नहीं रहा हूँ, वो आपने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करना है, वहां पे स्टडी किया होगा। सो इसमें रेड काउ या रेड जो बुल होता है उसको अगर हम लोग उसके अपोजिट कैरेक्टर मींस व्हाइट स्किन रखने वाले अपोजिट सेक्स वाले एनिमल से अगर उसको क्रॉस करवाते हैं तो जो इंटरमीडिएट होता है, दोस इंटरमीडिएट दे विल प्रोड्यूस अ टिपिकल मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब ये कि वहां पर दोनों के बीच का कलर तो नहीं आता, बट दोनों कलर साइमल्टेनियसली एक ही इंडिविजुअल में एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो जो वैरायटी हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं रोन वैरायटी, जिसकी बॉडी के ऊपर कहीं पर जो है वो रेड पैचेस आ जाते हैं, कहीं पर जो है व्हाइट पैचेस आ जाते हैं। तो एक तो वो एग्जांपल है कोट कलर इन कैटल की, और सेकेंड जो एग्जांपल हमको स्टडी करना है इट इज द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप एंड इट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखो ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लोगों ने स्टडी किया है सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, और 12th में हम लोगों ने स्टडी किया था इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो ऑलरेडी हमको जो है हमारा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला यूनिट जो है वो कंप्लीट हुआ है और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हैं हम लोग।
तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसके बारे में हमको मालूम है कि पूरी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको हम ए बी एबी और ओ इस तरह से 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये यहाँ पर कोडोमिनेंस के साथ साथ जो है ये मल्टीपल अलील को भी फॉलो करता है। मल्टीपल अलील कंसेप्ट 12th में मल्टीपल अलील का कंसेप्ट अलग से टॉपिक स्टडी किया गया था और यहाँ एनसीईआरटी में मल्टीपल अलील जो है वो अलग से नहीं दिया हुआ है। मल्टीपल अलील जो है उसको इसी ह्यूमन ब्लड ग्रुप के एग्जांपल के थ्रू यहाँ कोडोमिनेंस के अंडर में ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो है 2 टॉपिक जो है वो सेम एग्जांपल से पढ़ रहे हैं, एक मल्टीपल अलील का टॉपिक और दूसरा कोडोमिनेंस। तो यहाँ पे ह्यूमन का जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, दैट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें हमको पता है कि जो ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील होती है दैट अलील इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई यहाँ पर स्टैंड करता है आइसोएग्लूटिनोजन के लिए, जिसको हम एंटीजन भी बोलते हैं, जो कि आरबीसीज की सरफेस के ऊपर होता है। अब इसके जो है इसके हमको 3 अलील्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कोई जीन के 2 ही अलील होते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने एक जीन के 2 अलील को पढ़ा है। यहाँ पर ये जो जीन आई है इसके 3 पॉसिबल अलील्स हैं। तो यहाँ पर जो 3 पॉसिबल अलील्स हैं उसमें एक को हम लिखते हैं आई सुपरस्क्रिप्ट ए, दूसरा होता है आई सुपरस्क्रिप्ट बी और तीसरा हम लिखते हैं स्मॉल आई। So these are the 3 possible alleles and these allele 2 से ज्यादा हो गए हैं तो इसके लिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल बोल रहे हैं, मल्टीपल अलील। ये 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड करता है मल्टीपल अलील आते ही क्यों है। मल्टीपल अलील जो है वो रिपीटेड म्यूटेशन की वजह से आते हैं। बार बार जो है वाइल्ड अलील के अंदर या म्यूटेटेड अलील के अंदर बार बार म्यूटेशन होने की वजह से, चेंजेस होने की वजह से ये अलील अराइज होते हैं। सो यहाँ पर जो अलील है आई ए आई बी और स्मॉल आई, इसके अंदर इनका जो डोमिनेंस रिसेसिव का रिलेशनशिप है वो इस तरह से है। यहाँ पर आई ए और आई बी ये दोनों का जो एक्सप्रेशन पावर है वो इक्वल है, मतलब दोनों अपने आप को इक्वली साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर आई ए और आई बी ये दोनों एक दूसरे के साथ में शो करते हैं कोडोमिनेंस। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कोडोमिनेंस का रिलेशन रखते हैं और ये दोनों ही आई ए और आई बी ये दोनों की जो एक्सप्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आई ये ज्यादा है। तो मैं इसको ग्रेटर देन की साइन से शो कर दे रहा हूं समझने के लिए। So IAIB is completely dominant over small i। Small i के ऊपर ये जो है वो completely dominant है, पूरी तरह से dominant। मतलब ये हुआ कि अगर small i जो है अगर IA के साथ में आएगा तो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अगर small i जो है वो IB के साथ में आएगा तो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो IA जो है ये स्टैंड करता है ब्लड ग्रुप A के लिए। मतलब आई ए अलील जो है वो ऐसे एंजाइम बनाती है जो ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करने वाला प्रोटीन होता है जिसको हम लोग H सब्सटेंस बोलते हैं। तो वो H सब्सटेंस जो है वो A टाइप के एंटीजन में कन्वर्ट होता है और आई बी अलील जो है वो H सब्सटेंस को B टाइप के एंटीजन में कन्वर्ट करता है। और अगर आई ए और आई बी ये दोनों साथ में आते हैं तो दोनों टाइप के एंटीजन प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी आ जाता है। तो यहां पर जो है और ये दोनों अगर स्मॉल आई के साथ में आते हैं तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, स्मॉल आई एक्सप्रेस नहीं होगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग जो है वो ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप डिसाइड करते हैं। तो ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप है वो इस तरह से मालूम पड़ेगा हमको कि एक तरफ मैं लिखता हूं यहां पर ब्लड ग्रुप और दूसरे कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं इसके पॉसिबल जीनोटाइप।
chalk white. So blood group and their genotype. Now we have blood group A, blood group B, blood group AB and blood group O. तो ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप हैं हमारे पास में ABO सिस्टम के अंडर में। तो ब्लड ग्रुप A जो है इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द जीनोटाइप। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया है डोमिनेंस और रिसेसिव का रिलेशनशिप। तो अगर IA होमोजाइगस अगर आता है दोनों क्रोमोसोम पर, अगर IA टाइप के एलील आएंगे तो ब्लड ग्रुप A आएगा, ऑब्वियस है। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस A। और या फिर जो है एक क्रोमोसोम के ऊपर IA आ जाए और दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल i, तो भी यहाँ पर जो स्मॉल i है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, IA वाला ही एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं IA स्मॉल i के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस इफेक्ट रखता है। ऐसे ही जो है वो B के लिए भी है। सो IB और IB एंड स्मॉल i, तो ये यहाँ पर दोनों जो है ब्लड ग्रुप B प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस B और इसको कहेंगे हेट्रोजाइगस B। AB के लिए एक ही जीनोटाइप पॉसिबल है, IA IB, और ऐसे ही O के लिए एक जीनोटाइप पॉसिबल है, स्मॉल i। तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जीनोटाइप है और 4 फिनोटाइप्स हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आया था अभी 2 इयर्स बिफोर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि ब्लड ग्रुप जो है उसकी एग्जांपल लिया था और पूछा था कि ब्लड ह्यूमन में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या क्या फॉलो करता है, मतलब कौन कौन से फिनोमिनन फॉलो करता है। तो ऑप्शन में इस तरह से दिया था, डोमिनेंस था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, कोडोमिनेंस था, और फिर नीचे कॉम्बिनेशन में ऑप्शन दिए थे 1 2 2 3 1 2 3, इस तरह से कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस दिए हुए थे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंप्लीट डोमिनेंस भी फॉलो हो रहा है, कोडोमिनेंस भी फॉलो हो रहा है और मल्टीपल अलील भी फॉलो हो रहा है। मतलब 3 कॉन्सेप्ट जो है वो इसी एक एग्जांपल के अंदर हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका हम इनहेरिटेंस भी निकाल सकते हैं। दिया रहता है कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ये है, तो ऑफस्प्रिंग्स में जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप आएगा वो क्या होगा वो बताओ मालूम करके, या ऑफस्प्रिंग्स का दिया रहता है तो पेरेंट्स का पूछता है। तो हम यहाँ से जो है ये जीनोटाइप से क्रॉस करके और ऑप्शंस को देख करके हम लोग करेक्ट ऑप्शन पिकअप कर सकेंगे। सो ये हो गया अपना कोडोमिनेंस का फिनोमिनन। नाउ द नेक्स्ट इज प्लियोट्रॉपी। See, we are studying here the non-Mendelian inheritance। तो ये सब जो टॉपिक अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है और प्लियोट्रॉपी है, मल्टीपल एलील्स है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट थे ये मेंडल ने नहीं इंट्रोड्यूस किए थे। ये मेंडल के बाद जो नॉन मेंडेलियन साइंटिस्ट थे, नियो मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है, वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अभी यहां पर हम लोग देखते हैं प्लियोट्रॉपी। सो प्लियोट्रॉपी किसको बोलते हैं, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो मेंडल वाले कंसेप्ट में हमने देखा था कि 1 जीन जो है वो 1 कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, यहाँ पर होता है 1 जीन एक ही रहेगा पर उसके इफेक्ट जो है या उसका एक्सप्रेशन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर पड़ेगा। सो 1 जीन मोर देन 1 इफेक्ट। अगर एक जीन है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर के ऊपर अपना इफेक्ट छोड़ रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है, तो ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन।
and such phenomenon is called as the pleiotropy. अब यहाँ पर भी देखिए जो एग्जांपल आपने स्टेट बोर्ड में पढ़ी है या पढ़नी है आपको, जो स्टेट बोर्ड में दी हुई है, तो वो स्टेट बोर्ड वाली जो एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ सिकल सेल एनीमिया. वो सिकल सेल एनीमिया भी एग्जांपल है, वहां पर भी प्लेयोट्रॉपी देखने को मिलता है. मतलब वहां क्या होता है कि एक ही जीन होता है जो म्यूटेट होता है, और वो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन जब म्यूटेट हो जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो हीमोग्लोबिन की बायोकेमिस्ट्री पर भी पड़ता है, और साथ ही साथ आरबीसी का जो शेप होता है वो भी ट्विस्ट हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है, हाफ मून शेप हो जाता है, उसके ऊपर पड़ता है. तो वहां पर भी जो है प्लेयोट्रॉपी देखने को मिलता है. और यहाँ जो हमको एग्जांपल दी हुई है वो एनसीईआरटी की जो एग्जांपल है वो है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस. तो मैं दोनों लिख देता हूँ एग्जांपल, और प्लेयोट्रॉपी की वो जो एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया वाली पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ कहां पर पढ़ना हमको. सो एग्जांपल में यहां पर हमको पढ़ना है आगे सिकल सेल एनीमिया इन ह्यूमन. तो सिकल सेल एनीमिया वाली जो एग्जांपल हमको ह्यूमन बीइंग में स्टडी करना है, ये यहां पर हमको डिजीजेस में स्टडी करना है. हम लोग एक जेनेटिक डिसऑर्डर का टॉपिक अलग से स्टडी करेंगे, तो वहां पर और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो वहां पर हमको सिकल सेल एनीमिया भी स्टडी करना है. जो एग्जांपल अभी हम लोग यहां पर लेंगे वो है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस. स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस इन एंड shape of seed in pea plant. और पी क्या, जो मटर के दाने का जो शेप होता है वो. तो यहाँ पर ऐसा है कि स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस जो है ये कंट्रोल होती है अलील बी से. बी स्टैंड करता है यहाँ पे बिग. तो मैं पहले जो है वो लिख देता हूँ फिनोमिनन बी बी. अगर ऐसा आ रहा है जीनोटाइप बी बी, तो ये होमोजाइगस बी बी है, मतलब बिग बिग. बिग का मतलब स्टार्च के जो ग्रेन रहेंगे, स्टार्च के जो दाने रहेंगे वो साइज में बड़े रहेंगे. तो अगर बी बी जीनोटाइप है किसी प्लांट के पास में, तो स्टार्च ग्रेन की जो साइज रहेगी वो लार्ज रहेगी, लार्ज स्टार्च ग्रेन. सो इट विल प्रोड्यूस लार्ज स्टार्च grain, and these large sized of starch grain ultimately they will produce the round color of the pea seed. तो इससे जो पी के सीड का जो शेप आएगा, राउंड शेप, वो रहेगा राउंड शेप ऑफ द पी. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है. फिर दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी की. तो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी में क्या होगा, अगर सपोज कर लो किसी प्लांट के पास में कैपिटल बी स्मॉल बी आता है, तो यहाँ पे कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी एंड इट विल प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन और शेप ऑफ द सीड जो होगा वो यहां पर भी राउंड ही रहेगा. तो शेप जो है वो राउंड मिलेगा हमको, लेकिन स्टार्च ग्रेन की जो साइज है वो इंटरमीडिएट मिलेगी. तो अभी यहां तक कि हमने क्या देखा है कि कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल बी स्मॉल. तो कैपिटल बी स्मॉल बी पर अगर हम स्टार्च ग्रेन को एज अ फिनोटाइप लेते हैं, मतलब स्टार्च ग्रेन को हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर, एक्सप्रेस होने वाला कैरेक्टर मान के चले, तो कैपिटल बी जो है स्मॉल बी के ऊपर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रखता है. देखो इसीलिए यहाँ पर जो है साइज जो है वो इंटरमीडिएट आ गई है. अगर कंप्लीट डोमिनेंस रखता होता तो यहाँ पर भी जो है वो लार्ज आती. लेकिन तीसरा जीनोटाइप जब हम लिखते हैं स्मॉल बी, तो
ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल ग्रेन ऑफ स्टार्च, स्मॉल स्टार्च ग्रेन। और ऐसा सीड जिसके अंदर ग्रेन स्टार्च ग्रेन की जो साइज है वो छोटी रहेगी, स्मॉल रहेगी, उस सीड का जो शेप रहेगा वो आगे जा करके रिंकल्ड हो जाएगा, तो वो आगे जा करके रिंकल्ड हो जाएगा। तो अभी यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग, ये इधर तो शेप ऑफ द सीड है, यहां पर ये जो है शेप है, तो अगर हम लोग शेप को कंसीडर करते हैं एज अ फिनोटाइप, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी पे कंप्लीट डोमिनेंस रखता है। कब? अगर हम लोग शेप ऑफ सीड को एज अ फिनोटाइप कंसीडर करते हैं। और अगर हम लोग जो है स्टार्च ग्रेन की साइज को एज अ फिनोटाइप कंसीडर करते हैं, तो इसमें हमको ये दिख रहा है कि कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस रख रहा है। तो प्लियोट्रॉपी कैसे है? प्लियोट्रॉपी जो है वो यहां पर है, देखो अलील एक ही है या जीन एक ही है, लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो एक से ज्यादा है। मतलब यहां स्टार्च ग्रेन के ऊपर लार्ज स्टार्च ग्रेन हो सकता है, इंटरमीडिएट साइज का स्टार्च ग्रेन हो सकता है, या स्मॉल साइज का हो सकता है, और ऐसे ही सीड के शेप पर राउंड हो सकता है या कि रिंकल्ड हो सकता है। तो यहां अलील एक है पर उसके इफेक्ट जो है वो मल्टीपल फिनोटाइप है, मल्टीपल इफेक्ट एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं अपने को, तो इसको बोला जाता है प्लियोट्रॉपी, ऐसे फिनोमिनन को। तो ये एग्जांपल दी हुई है। और सिकल सेल एनीमिया जो स्टेट बोर्ड की एग्जांपल है वो भी हमको यहाँ पढ़ना है, लेकिन वो हमको यहाँ पे दूसरे टॉपिक में दिया हुआ है, वो है जेनेटिक डिसऑर्डर वाले टॉपिक में। तो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले टॉपिक में हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे, सिकल सेल एनीमिया को। हमको पढ़ना सभी है आगे पीछे करके, पर हम लोग जो है वो रेस्पेक्टिव टॉपिक के हिसाब से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, हम लोग देखते हैं अभी। तो अब तक के हम लोगों ने इनहेरिटेंस इन वन जीन स्टडी किया है, फिर उसके बाद में इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टडी किया है, बीच में दो लॉ स्टडी किए हैं मेंडल के, को डोमिनेंस स्टडी किया है, और ये वाला टॉपिक अभी स्टडी किया प्लियोट्रॉपी का। नाउ वी विल सी अगेन वन ऑफ द मेंडेलियन क्रॉस जो कि मेंडल ने परफॉर्म किए थे। It is inheritance of two genes. So inheritance of two gene, or it is also known as dihybrid cross, इसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। तो पहले इसको हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मीन बाय द डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस, इट इज अ क्रॉस व्हिच इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। ऐसा क्रॉस जहां पे हम लोग टू पेयर्स ऑफ ट्रेट का इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं। मतलब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने जो है वो एग्जांपल के तौर पर हाइट ऑफ द पी प्लांट लिया था, तो यहाँ पे हम हाइट के साथ कोई और कैरेक्टर को भी साइमल्टेनियसली उसके इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे। या जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने सिलेक्ट किए थे, वो 7 टिपिकल मेंडेलियन कैरेक्टर में से कोई भी 2 कैरेक्टर साइमल्टेनियसली उनके इनहेरिटेंस को अगर स्टडी करते हैं, तो ऐसे फिनोमिनन को हम लोग जो है डायहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन बोलते हैं। सो यहां वी कैन टेक द एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। इट इज द सीड कलर एंड सीड शेप। तो सीड कलर और सीड
शेप। Now in case of the seed color में हमको पता है कि दो पॉसिबिलिटीज है। पी प्लांट के जो सीड रहते हैं, पी सीड जो रहते हैं, उसमें सीड कलर में दो पॉसिबिलिटी, दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, उसके ट्रेड्स हैं। तो या तो जो है सीड कलर येलो हो सकता है, और या उसी का जो रिसेसिव फॉर्म है ग्रीन हो सकता है। ऐसे ही सीड शेप में भी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, या तो शेप जो है वो राउंड हो सकता है, और या कि ये रिंकल्ड हो सकता है। तो अगेन जो मेंडल का प्रोसीजर था क्रॉस परफॉर्म करने का, जैसा कि मोनोहाइब्रिड में हमने देखा था, फर्स्ट स्टेप जो थी वो थी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। तो मेंडल हमेशा जब भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता था तो प्योर पेरेंट्स के साथ, मतलब ऐसे पेरेंट जो अपने अपने फीचर्स में, अपने अपने कैरेक्टर में होमोजाइगस हो, और फिर उसके बाद में एक दोनों में से किसी एक पेरेंट का इमैस्कुलेशन करता, और फिर वहां दूसरे वाले पेरेंट के पास से पोलन ग्रेन को लेकर के आर्टिफिशियली इमैस्कुलेट किए हुए प्लांट की स्टिग्मा के ऊपर उसको डस्टिंग करता। तो सेम प्रोसीजर जो है यहाँ डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी है। तो स्टेप हम लोगों ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिखे थे वही सेम स्टेप्स हैं। आप लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, वहां पर स्टेप्स लिखी हुई हैं, और सेम उसी सीक्वेंस में जो है हम लोग यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस को भी स्टडी करेंगे। सो यहाँ सीड कलर के लिए और सीड शेप के लिए हम लोग दो ऐसे प्लांट जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और मेंडल ने इसको जो है बार बार सेल्फिंग करके सिलेक्ट भी किया था, जो इस तरह से रहेंगे। एक जो पेरेंट रहेगा पेरेंटल जनरेशन में, उसके पास से यहां से एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, और इस कैरेक्टर में से ये वाला डोमिनेंट ट्रेट होगा। सो येलो एंड राउंड, या राउंड येलो आगे पीछे भी लिख सकते हैं उसको हम लोग। फिर इसको क्रॉस करना है दो रिसेसिव, साइमल्टेनियसली दो रिसेसिव कैरेक्टर रखने वाले प्लांट से, ग्रीन एंड रिंकल्ड। Okay, this is the phenotype. Now we write the genotype of both of these two. This is Y, capital R, and this is small y, small r, small r. When gametes are formed, जब इसमें gametes बनेंगे तो सेग्रीगेशन होगा। यहाँ पे Y वाला दूसरे Y से अलग होगा, और R एलील जो है वो दूसरे डोमिनेंट R या कैपिटल R एलील से अलग होगी। तो गैमेट में पहुंचेंगे कैपिटल Y एंड R, ये दोनों एलील्स यहां से स्मॉल y और स्मॉल r, ये दोनों एलील्स F1 जनरेशन जब फॉर्म होगी दोनों के फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर, तो इसका जीनोटाइप आ जाएगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, एंड दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन। तो ये जीनोटाइप है। अभी जीनोटिपिकली हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द हाइब्रिड है, एक डोमिनेंट एलील है और फिर उसी कैरेक्टर के लिए एक रिसेसिव है, फिर इसके लिए डोमिनेंट एलील है शेप के लिए और एक रिसेसिव है। बट इसका जो फिनोटाइप रहेगा वो रहेगा यहाँ पे येलो सीडेड एंड राउंड शेप। तो राउंड येलो या येलो राउंड इसका फिनोटाइप रहेगा। मतलब जितने भी सीड्स यहाँ F1 जनरेशन के प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस होंगे, all these seeds will show yellow coloration and red and round shape, yellow round. Okay, so this will be the phenotype. तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, डोमिनेंस का जो फिनोमिनन उसने बताया था कि जब हम लोग जो है वो दो अल्टरनेटिव या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रखने वाले प्लांट्स को क्रॉस करते हैं, तो F1 जनरेशन में आउट ऑफ द दो में से कोई एक ही ट्रेट जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो यहां तक तो हमको डायहाइब्रिड क्रॉस में भी देखने को मिल रहा है कि ये दोनों में से मींस येलो राउंड और ग्रीन रिंकल्ड में से यहाँ पे सिर्फ येलो राउंड ही एक्सप्रेस हो रहा है, ग्रीन रिंकल्ड एक्सप्रेस नहीं हो रहा है।
बट फिर अगेन उसने जो है इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि ग्रीन रिंकल्ड जो प्लांट हैं या ग्रीन रिंकल्ड सीडेड जो प्लांट्स हैं ये आगे की जनरेशन में कभी अपने आप को अपीयर करेंगे कि नहीं करेंगे, इस चीज की इसको टेस्टिफाई करने के लिए उसने क्या किया, उसने जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स आए उनको सेल्फ क्रॉस किया, उनको आपस में क्रॉस करवाया. सो नाउ वी विल सी द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ दिस. यहां पर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r क्रॉस विद इटसेल्फ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r. यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे, अपने को पता है कि जो गैमेट्स यहाँ पर बनने वाले हैं वो 4 गैमेट्स इसके अंदर बनेंगे. कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, 4 टाइप की गैमेट और 4 टाइप की गैमेट्स इसके अंदर बनेंगे. तो ये गैमेट्स पहले मैं लिख देता हूँ और फिर बाद में वो गैमेट्स का जो पॉसिबल फ्यूजन है वो हमको पुनेट स्क्वायर से या चेकर बोर्ड से स्टडी करना है. तो गैमेट्स में पहले लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R, एक गैमेट ये होगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r. ये 4 टाइप के गैमेट्स यहाँ पर बनेंगे. सपोज कर लो ये इसको हमने एज अ मेल प्लांट कंसीडर किया और इसको हमने एज अ फीमेल प्लांट कंसीडर किया. तो यहाँ पर भी जीनोटाइप इसके जैसा ही है. तो यहाँ पर भी अपने को कैपिटल Y R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r. ये 4 टाइप की गैमेट यहाँ पे फीमेल गैमेट मिलेंगी. तो ये 4 की पॉसिबिलिटी मेल गैमेट के लिए है, सेम 4 की पॉसिबिलिटी जो है वो फीमेल के लिए भी, क्योंकि दोनों सेम ही प्लांट है, हम सेल्फिंग कर रहे हैं तो गैमेट्स भी जो है यहाँ पर सेम बन रहे हैं. अब यहाँ पे ये 4 गैमेट से फ्यूज होने का इक्वल चांस रखते हैं. तो हम लोग जो है वो बारी बारी ये वाला एक गैमेट लेकर के ये चारों से फ्यूज करके देखेंगे कि कैसा फिनोटाइप आता है. फिर दूसरा इधर से लेकर के ये 4 से फ्यूज करके देखेंगे कि कैसा फिनोटाइप आता है. सेम इधर से थर्ड और बाकी के 4 के साथ में फ्यूज करके. तो इसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है एक चेकर बोर्ड के थ्रू, स्क्वायर्स के थ्रू, जिसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर और पुनेट चेकर बोर्ड. तो F2 जनरेशन जो हमको मिलेगी वो पुनेट चेकर बोर्ड के थ्रू मिलेगी. तो जो पुनेट चेकर बोर्ड है वो हम लोग जो है वो प्रोजेक्टर पर देख लेते हैं कि हमको क्या मिलेगा उसके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप. ओके.